ये नया भारत है, ये आत्मनिर्भर भारत है। और आपको हम ये भी बता दें कि भारतीय नौसेना को वो युद्धपोत मिल गया है जो भारत का अब तक का सबसे खतरनाक, घातक, विध्वंसक और ताकतवर युद्धपोत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईएनएस इम्फाल की और इस वक्त हम आईएनएस इम्फाल में ही मौजूद हैं और ये पर्टिकुलर एरिया हम बात करें तो ये ब्रिज एरिया है और इस कोने को हम आपको बारीकी से समझाएंगे इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मायने मतलब है। तो इसके लिए हम एक्सपर्ट से ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल अंशु भाऊ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। तो क्या आप हमारे ऑडियंस को, हमारे दर्शकों को इस एरिया की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि आखिर यहाँ है क्या क्या? ये जो पार्ट है शिप का उसको ब्रिज बोलते हैं, जहाँ पे हमारे पास बहुत नेविगेशनल, कम्युनिकेशन एंड कमांड इक्विपमेंट अवेलेबल हैं। जहाज़ के इस जगह से शिप की दिशा डिसाइड की जाती है, मनूवर यहाँ से किया जाता है। जहाज़ को अगर किसी और जहाज़ से या शोर अथॉरिटी से कम्युनिकेट करना है तो वो यहाँ से किया जा सकता है। अगर कोई कमांड डिसीजन लेने हैं तो हमारे पास सेंसर्स की इंफॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है, जिससे कोई डिसीजन लिया जा सकता है। ये जो जगह है ब्रिज, आप देख सकते हैं कि ये विंडोज़ हैं जिसके बाहर से आप सराउंडिंग एरियाज़ को देख सकते हैं, जो आपको सिचुएशनल अवेयरनेस बढ़ाने के काम काइंड आता ऑफ है। मॉनिटरिंग भी कह सकते हैं। Monitoring. So basically, visual navigation, if you have to do, you can do through the windows and you can look around and you will have the surrounding area available. The other part of the bridge basically is the steering post, where the quartermaster sits. The officer of the watch who is doing a watch in the bridge will basically be having the safety of the ship in his hand. He is responsible for directing and maneuvering the ship. He will give the order to the quartermaster, who will in turn apply a particular wheel, and the ship will maneuver in that particular direction. So this post is used for steering the ship. As we move around, there are other navigational equipment which are available. This one is called as this ship has the IBS, which is the integrated bridge system, in which multiple subsystems are connected to one system. All the sensors information is available to officer of the watch at one go. So one part of that system is the ECDIS, which is the electronic chart display information system, which is nothing but the electronic version of the paper chart which we used to use earlier, which map, kind like a of map. map. Yes, you can say it's like a map, but a nautical map, where you have depths available, you have different navigational marks plotted, which helps in the navigating the ship from one place to another. Similarly, we have the radar system available, which helps us in tracking the vessels, other vessels which we encounter at sea, and tells and basically the information about those vessels, the course and speed is available, which helps us in avoiding the collision with them. So it is basically used for collision avoidance. Moving ahead, we have the conning system available in the bridge, which is used for internal communication. If the officer of the watch has to communicate with other parts of the ship, like an operations room or the machinery control room, he can pick up the con and communicate with those part of the ship. Also, we have multiple equipment available for external communication if we want to communicate with other ships or if we want to communicate with the shore authorities. At the same मतलब शिप के अंदर भी कम्युनिकेशन करने के लिए और इसके अलावा अगर हम आउट ऑफ शिप भी बात करें तो हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, राइट? दैट इज़ करेक्ट। इस ब्रिज की ये खासियत ये है कि ये फुल्ली डिजिटली नेविगेशनल कंप्लाइंट शिप है। सो हमें बिना पेपर चार्ट के भी हम नेविगेट कर सकते हैं। हमारे पास ये OBD अवेलेबल है, विच इज़ ऑप्टिकल बेयरिंग डिवाइस, जिससे हम नेविगेशनल मार्क की बेयरिंग डायरेक्टली हमारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं और हमारी पोजीशन पता कर सकते हैं एट सी। सो हमें पूरी तरीके से GPS पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं। हमें ये विजुअल नेविगेशन ऑन डायरेक्टली ऑन इलेक्ट्रॉनिक चार्ट भी में भी हेल्प मिलती है इस OBD से। इसके अलावा हमारे ब्रिज में ये कैप्टन्स चेयर है। यहाँ पे ये हमारे देखने से ही मतलब हॉट सीट जैसा Yes, लग one of रहा the है, hot इज seats. इट? Yes, so this is where the commanding officer of the ship sits and gives decision. So if you see, there is also one display available to him, which is called as the MFD, the multifunctional display. So all those information which is available to the officer of the watch in those displays are also available to commanding officer here. So he can sit, have a visual appreciation of the situation as well as all the sensory information available, which will basically help in making the decision. So we have CCTV cameras all around the ship. The picture is available, so visual appreciation of whatever is happening inside the ship is also available. This particular panel is called as the BVU, which is the bridge veto unit. So the commanding officer of the ship has complete veto over every weapons of the ship. Until and unless he switches on this switch, the weapon cannot be fired.
So the final authority and the final veto is the commanding officer. So if a system is ready in all respect, he has to switch it on for the vessel, for the weapon to be fired. The most important area we can You can say this is one of the most important panel available in the bridge. तो आपने देखा अभी हमने आपको ब्रिज के कोने कोने की तस्वीर दिखाई, समझाया कि ये हिस्सा आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और मैं अभी भी उसी हॉट सीट के पास ही खड़ी हूँ। तो चलिए चलते हैं इस शिप के दूसरे अहम हिस्से की तरफ। तो इंडिया डेली लाइव आपको आईएनएस इम्फाल के कोने कोने से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है एक्सक्लूसिवली, और तस्वीरों को दिखाते दिखाते हर एक हिस्से को समझाते समझाते हम पहुंच चुके हैं सिक पे। और चलिए यहाँ पर सीधे हम यहाँ के एक्सपर्ट से ही बात कर लेते हैं। हाय सर्जन। हाय मैम, हाउ यू? आई एम गुड, थैंक यू। तो आप बताएंगे हमें इस एरिया के बारे में, पर्टिकुलर एरिया के बारे में, व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? ये शिप का सिक बे है। शिप के सिक बे इज़ अ मिनी हॉस्पिटल। यहाँ पर हम सारे मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसीज का इलाज कर सकते हैं। हमारे पास 2 बेड है और एक एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर के लिए एक टेबल है, जहाँ पर हम ऑन बोर्ड सर्जरीज कर सकते हैं। बस एक सवाल आ रहा है, समंदर में सिक हो जाना बहुत टफ होता होगा ना, सिचुएशन काफ़ी मुश्किल हो जाती होगी। इट थोड़ा टफ हो जाता है, बट इसलिए हम सारे इक्विपमेंट एंड सारे मेडिकल इक्विपमेंट जितने भी हमें चाहिए होते हैं टू हैंडल एनी इमरजेंसी हम लेके चलते हैं, जस्ट लाइक डिफिब्रिलेटर, ईसीजी मशीन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीजन टैंक्स। तो हम इसके साथ साथ हम 6 से 8 महीने के एक्स्ट्रा दवाई भी लेके चलते हैं, ताकि हम कोई भी बीमारी हो किसी को, हम उसका इलाज कर सकें ऑन बोर्ड। तो चलिए सिक बे को हमें कोने कोने से दिखाइए, समझाइए हमारे दर्शकों को। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें भी समझना है पूरी जी। शिप को। जी, तो ये जैसे आप देख सकते हैं, ये हमारा एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर का टेबल है। वी हैव 2 एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर लाइट्स जो स्पेसिफिकली शिप के लिए डिज़ाइन होके आए हैं। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज़ आवर एंटायर टेलीमेडिसिन फैसिलिटी। टेलीमेडिसिन अभी रिसेंटली इंडियन नेवी ने इंटीग्रेट किया है। टेलीमेडिसिन से हम ऑनलाइन वाया सैटेलाइट लिंक हम हमारे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो टर्शरी हॉस्पिटल्स में हैं, हम उनसे कनेक्ट करके उनका ओपिनियन और उनका हेल्प ले सकते हैं। ये इवन एट सी हम यूज़ कर सकते हैं, और जो भी हम एग्जामिनेशन यहाँ करते हैं, इट गोज़ डायरेक्टली टू आवर हॉस्पिटल्स एंड वहाँ से फिर हमें ओपिनियन मिलता है। तो दिस फर्दर हेल्प्स इन गिविंग द बेस्ट पेशेंट केयर टू ऑल ऑफ आवर मैन एंड वुमेन इस शिप पे। एंड इन एडिशन टू दिस हम सारे मेडिसिन और सारे इक्विपमेंट्स रेगुलरली मेंटेन करते हैं, ताकि वी हैव द बेस्ट पॉसिबल मेडिकल केयर हमारे फॉर आवर सेलर्स एंड फॉर आवर ऑफिसर्स। सो दैट्स। तो हम ये समझ सकते हैं इससे कि देखिए, समंदर में भी कोई बीमार पड़ता है, कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते भी है ना, आपने सुना भी होगा शायद, एक शायरी है, मौत आई है तो क्या मर जाऊंगा, दरिया हूँ समंदर में उतर जाऊंगा। तो भारतीय नौसेना सदैव तत्पर है आपकी रक्षा के लिए, भारत की रक्षा के लिए। इस बीच दुश्मन देशों की हालत बहुत खराब है, क्योंकि खास तौर पर हम बात करें चीन और पाकिस्तान की, तो उनके होश उड़ गए हैं, क्योंकि भारतीय नौसेना को मिल गया है सबसे बड़ा शिकारी। जी, हम बात कर रहे हैं आईएनएस इम्फाल की, और इस वक्त हम इस शिप के जिस हिस्से में मौजूद है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्यों और कैसे, हम यहाँ पर ऑफिसर से ही बात कर लेते। पहली मर्तबा हम आपको ये बता दें कि ये एमसीआर डिपार्टमेंट है। आपने हमारे न्यूज़ चैनल के एमसीआर के डिपार्टमेंट के बारे में सुना ही होगा, कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, जिसकी वजह से हम आप तक खबरें पहुँचा पाते हैं, हर एक तस्वीर पहुँचा पाते हैं। तो अब समझते हैं कि आईएनएस इम्फाल में एमसीआर का क्या रोल है। ऑफिसर, क्या बताएंगे आप? जैसा एक बदन का दिल होता है, वैसे ही शिप का जो दिल होता है वो एमसीआर में होता है, मशीनरी कंट्रोल रूम। जैसा आप देख सकते हैं, ये वो कंपार्टमेंट है जहाँ से हम शिप का जो मेन प्रोपल्शन है, पावर जनरेशन है, और जितने भी ऑक्सिलरी मशीन है उसका कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग सारा का सारा यहीं से करते हैं। जब हम एट सी रहते हैं, जो हमारे 4 गैस टर्बाइंस हैं, जिससे हमें प्रोपेलर के लिए थ्रस्ट मिलता है, 64,000 हॉर्स पावर के गैस टर्बाइंस का टोटल पावर है, और 270 आरपीएम तक वो जब जाती है तो पूरे शिप को 30 नॉट्स के ऊपर में ये स्पीड मिलती है। ये पूरा का पूरा कंट्रोल इसी मशीनरी कंट्रोल रूम से होता है। ये शिप एक शिप नहीं है, ये एक चलता फिरता स्मार्ट सिटी है जो खुद में पावर जनरेशन भी कर रहा है। तो इसमें 4 गैस टर्बाइन जनरेटर्स, एक डीजल अल्टरनेटर लगा हुआ है। 120 टन्स पर डे फ्रेश वाटर ये जनरेट करता है। इस तरह की कैपेसिटी को आप
किसी और शिप्स में ऐसा करना बहुत ही नामुमकिन है। ये इम्फाल लेटेस्ट मार्पोल कंप्लायंस शिप के अंदर आता है, जिसमें इंसिनरेटर है, बिल्च पंप्स हैं, OWS है, जिससे हमारा जो मरीन इन्वायरमेंट है वो भी बहुत सुरक्षित रहता है। हम्म, चलिए इसके हिस्सों को समझते हैं, बारीकी से बताइए कहाँ पे क्या है डिटेल में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो गैस टर्बाइंस है, यहाँ पे 2 कंट्रोल सेक्शंस रहते हैं। सो आप एक हमारे जो वाटर शिपर देख रहे हैं वो 2 गैस टर्बाइंस को कंट्रोल करते हैं और दूसरे साइड में दूसरे गैस टर्बाइंस को किया जाता है, दोनों सेट में। तो जब हम सी पे रहते हैं तो सब कुछ, ये पूरा कंपार्टमेंट फुल्ली मैन्ड रहता है और सारे हमारे जो क्वालिफाइड वॉच कीपर्स हैं बस वही ऑथराइज रहते हैं मशीनरीज को चलाने के लिए। वो बहुत, आप जैसे देख सकते हैं उस पैरामीटर्स, बहुत सारे पैरामीटर्स है, उसके अंदर भी जाएंगे आप, बहुत सारी डिटेल्स है, बहुत ज़्यादा इसकी टेक्नोलॉजी है। ये पूरा का पूरा सिस्टम जो IPMS का है वो LNT के द्वारा इंडिजिनसली बनाया हुआ है, जो एक खुद में मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव की तरह में बहुत बड़ी चीज़ है। उसके साथ साथ आप इस कंपार्टमेंट से जितने भी ऑक्सिलरीज है वो बहुत क्लोजली उसको मॉनिटर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर का इतना गर्मी, इतनी हाई टेम्परेचर में भी आपको यहाँ पे विंटर सीजन का एटमॉस्फेयर महसूस होता है। ये थ्रू आउट द सीजन, ये बिकॉज 1100 टन्स ऑफ रेफ्रिजरेशन की कैपेसिटी के जो यहाँ पे 6 AC प्लांट लगाए, हमेशा इतना ही ठंडा मौसम बना रहता है। हमारे शिप पे जो भी खाने का सामान रहता है उसको हम डीप फ्रीज, जैसा हम घर में बोलते हैं फ्रीज़र, वैसा हम ये डीप फ्रीज करके हम 30 डेज तक उसको रख सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। तो सारा का सारा पैरामीटर्स, कंट्रोल्स, एवरीथिंग हम इस मशीनिंग कंपार्टमेंट में लेकर, ये हमारा CCTV कंट्रोल है। यहाँ से हम जितने भी मशीनिंग कंपार्टमेंट में जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है उसको हम यहाँ से क्लोजली मॉनिटर करते हैं और कुछ भी अगर हमें अनसर्टेन चीज़ अगर होती है तो उनको इसको डिटेल में जा करके हम उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये हमारा लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले है, यहाँ से टच स्क्रीन पैनल के थ्रू हम हर इक्विपमेंट को अलग अलग पैरामीटर्स अलग अलग टाइम पे मॉनिटर कर सकते हैं। और ये IPMS कंट्रोल के सिस्टम की और ख़ास बात है कि अगर आप कुछ भी अलार्म्स, कुछ भी पैरामीटर्स, कहीं भी वेरिएशन आता है, इमीडिएटली इट पॉप्स अप एंड आपको इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन लेने के लिए वो आपको फीड टच देता है। स्क्रीन की फैसिलिटी Yes, मिलने ma'am. से कितनी ज़्यादा, मतलब आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है पहले की शिप्स और अभी में हम कंपैरिजन करते हैं, खास तौर पर INS इम्फाल से? तो एक्चुअली मैम देखेंगे तो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हमारे स्मार्टफोन्स पहले कीपैड्स होते थे, उसके बाद टच स्क्रीन आने के बाद हमारे एक्शन जो होते हैं बहुत फास्ट हो गए हैं। सेम गोज़ फॉर हेयर, अगर इसके जगह हमने कीबोर्ड माउस रखा होता तो वो जो हमारा ऑपरेशन टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। टच स्क्रीन में हम इमीडिएटली एक्शन कर सकते हैं एंड इट जस्ट नॉट अ स्क्रीन, इस पर हम ट्रेनिंग भी दे सकते हैं हमारे जो वॉच कीपर्स हैं जो नए आते हैं उनको सिखाने के लिए। तो वी यूज़ दिस स्क्रीन एज अ मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग कंसोल। इसमें हमने OBTS मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जिसमें आप एक सिमुलेशन की तरह दूसरे वॉच कीपर्स को आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, जिसमें वो समझ सकता है कि एक एक्टिविटी के बाद दूसरा एक्टिविटी कैसे करना होता है। और टच स्क्रीन के साथ साथ ये भी हमारे पास फैसिलिटीज़ है, इसमें लॉगिन क्रेडेंशियल सबका एक एक करके स्टोर किया हुआ है, जिससे कोई अनऑथोराइज पर्सन जो है वो इसको ऑपरेट नहीं कर सकता है। तो देखा आपने, ये न्यू इंडिया है और ये डिजिटल इंडिया है और तेजी से तरक्की कर रहा है और तेजी से ही भाग रहा है और तेजी से ही वार भी कर रहा है दुश्मनों पर। INS इम्फाल समंदर में चलती फिरती अपने आप में एक स्मार्ट सिटी, जिसकी लंबाई है 164 मीटर और विस्थापन क्षमता 7500 टन से भी कहीं ज्यादा। तो इसके कोने कोने की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंडिया डेली लाइव आपको एक्सक्लूसिवली हर एक हिस्से की तस्वीर दिखा रहा है INS इम्फाल का। तो यहाँ पर ऑफिसर खुद मौजूद है। सर हमें ये बताइए, अब हम चलते चलते कहाँ आ गए हैं? ये कौन सा कंपार्टमेंट है? अभी फ़िलहाल हम जहाज़ के 8 स्विच बोर्ड में हैं। इस जहाज़ में 2 स्विच बोर्ड हैं। ये स्विच बोर्ड इज़ द पावर हाउस ऑफ द एंटायर शिप। यहाँ से जितना पावर सप्लाई जनरेट होता है विद 4 जनरेटर्स, पूरे शिप में ये पावर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता मतलब है। बोलचाल की भाषा में हम अपने दर्शकों को ऐसे समझा सकते हैं कि अगर स्विच बोर्ड में बत्ती गुल हुई तो पूरे शिप की बत्ती गुल हो गई। परफेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली। तो यहाँ से सारे शिप के जितने भी सिस्टम्स हैं, वेपन, सेंसर्स, इन सब का पावर सप्लाई रिक्वायरमेंट्स, मॉनिटर और कंट्रोल यहाँ से होता है। तो अपने कंपार्टमेंट को आप हमें डिटेल में दिखाएंगे, बताएंगे इसके बारे में? ये ऑटोमेटेड पावर मैनेजमेंट सिस्टम है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है जो इंडिजिनसली बिल्ट है लार्सन एंड ट्यूब्रो के द्वारा। तो ये यहाँ से पूरा जहाज़ का हर एक लाइट, हर एक वेपन, हर एक सेंसर ऑपरेट किया जा सकता है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। हमारे जहाज़ में 4 जनरेटर हैं जो गैस टरबाइन जनरेटर कहा जाता है। ईच कैपेसिटी 900 किलोवाट का, और एक डीजल अल्टरनेटर है 1 मेगावाट का। सो कुल मिला के पूरा जहाज़ एक 4.6 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है, विच इज़ इनफ टू पावर द एंटायर कोलाबा एरिया। सो दिस इज़ द पावर सप्लाई कैपेसिटी ऑफ द शिप।
थैंक यू ऑफिसर। तो देखिए, हम आपको हर एक हिस्से की तस्वीर दिखा रहे हैं, सिर्फ दर्शकों को ही नहीं दिखा रहे हैं बल्कि हम अपने दुश्मन देशों को भी दिखा रहे हैं और चेता रहे हैं कि अब भारत की तरफ वो आंख उठाकर भी ना देखे। आईएनएस इम्फाल ये विशाखापट्टनम क्लास का तीसरा विध्वंसक है। ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जिसमें बराक और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लैस हैं। और इस शिप की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आईएनएस इम्फाल की ये भव्य तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की भी तस्वीर है, ये सशक्त भारत की भी तस्वीर है। चलिए सीधे हम कमांडर से बात करते हैं, जानते हैं सीधे सीधे उनसे उन्हीं की शिप के बारे में। कमांडर, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। क्या कहेंगे आप आईएनएस इम्फाल के बारे में? आईएनएस इम्फाल जैसा कि हमारा मोटो है, सदैव तत्पर, हम हर चैलेंज के लिए ऑलवेज रेडी रहेंगे और कोई भी दुश्मन का चैलेंज हो हमारे पर तो हम उसके लिए सतर्क रहेंगे और ऑलवेज रेडी रहेंगे। अब ज़रा हमें ये बताइए, ये ख़तरनाक सशक्त पावरफुल ब्रह्मोस पराग जैसी मिसाइलों से लैस है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। आपको जैसे कि सामने दिखाना चाहेंगे, ये ब्रह्मोस मिसाइल है। शिप में 16 ब्रह्मोस मिसाइल कैरी करने की क्षमता है और ये एंटी शिप जो कि दुश्मन के जंगी जहाज और लैंड अटैक के लिए यूज़ करा जा सकता है। और हालांकि हमने पिछले महीने ही 21 नवंबर 2023 को इसका सक्सेसफुल ट्रायल करा और एक मिसाइल से सक्सेसफुली टारगेट को एंगेज करा। एंड यहाँ ले जाते हुए ये है बराक 8 और मीडियम रेंज सैम जो कि सारे एरियल टारगेट दैट इंक्लूड्स एयरक्राफ्ट्स, मिसाइल्स और यूएवीज़ को टारगेट करा जा सकता है। और इसके पीछे ले जाते हुए वो है इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर जो कि MS-LNT के द्वारा बनाया गया है और एंटी सबमरीन वॉरफेयर और दुश्मन की पनडुब्बी के अगेंस्ट इस्तेमाल करा जा सकता है एज एन अर्जेंट अटैक वेपन। और ऊपर ब्रिज के ऊपर ले जाते हुए जो रडार घूमते हुए दिखाई दे रहा है वो है सरफेस सर्वेलेंस रडार जो कि लॉन्ग रेंज टारगेट्स के इंफॉर्मेशन हमें देता है और ओवर द होराइजन टारगेट्स की इन्फॉर्मेशन भी देता है। और सबसे ऊपरी सतह पर जो रडार है उसका नाम MF स्टार है, मल्टी फंक्शन सर्वेलेंस एंड थ्रेट अलर्ट रडार, जो कि कोलकाता क्लास और विशाखापट्टनम क्लास का मेन स्टे है। और इसी के द्वारा हम कोई भी एरियल थ्रेट जैसे कि एयरक्राफ्ट, मिसाइल और UAV हमारी शिप पर कोई भी हमला करने की कोशिश करे तो उसको नीचे गिराया जा सकता है या एंगेज करा जा सकता है। अच्छा, और माइनस इम्फाल की बात करते हैं तो इसे आत्मनिर्भर भारत की बहुत ही बेहतरीन तस्वीर बताया जा रहा है, कैसे? जैसे कि 75% मटेरियल या डिज़ाइन जो भी इसमें इस्तेमाल करा गया है इज़ इंडिजिनस एंड टुवर्ड्स दैट, जैसे कि हमारे CNS ने बोला था 2047 तक इंडियन नेवी वुड बी 100% इंडिजिनस। तो टुवर्ड्स दैट एज कम्पेयर टू 15 अल्फा वी इंक्रीज अ परसेंटेज फ्रॉम 62% से 75% एंड ग्रेजुअली वी विल बी इंक्रीजिंग दैट। इसके बारे में एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि जो MF स्टार रडार है अभी तक ये बाहर असेंबल होता था, बट पहली दफ़ा जो कि कोलैबोरेशन के साथ बनाया जा रहा है, इस दफ़ा पहली दफ़ा इंडिया में असेंबल करा गया, ट्रायल लिए गए एंड बेल बैंगलोर ने इसको प्रूव कराया। और यहाँ पे आप किसी खास हिस्से के बारे में और बताना चाहें? इसके अलावा MF स्टार की जो कैपेबिलिटी है जैसे कि मैंने बताया, अदर देन सर्वेलेंस इट आल्सो गिव्स टारगेट इन्फॉर्मेशन टू द मिसाइल्स दैट इज़ द MR-SAM और शिप की जो गन्स हैं जैसे कि SRGM दैट इज़ द MR गन फॉर द शिप एंड CIWS गन्स जो कि AK-630 है, इसके बलबूते पर फायर करी जाती है। अगर हम इसे चैलेंज वाइज बात करें, ख़ास तौर पर हम अपने कुछ दुश्मन देशों की बात करें, तो आईएनएस इम्फाल के आने के बाद भारतीय नौसेना कैसे पहले से कहीं ज़्यादा सशक्त हुई है और एक कड़ा संदेश है उन तमाम देशों को। उन तमाम देशों के लिए एक और डिस्ट्रॉयर ऐड होना वेस्टर्न फ्लीट में, तो वेस्टर्न फ्लीट या पश्चिमी बेड़े की ताकत बढ़ेगी और इसी के बलबूते पर जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है या पंच की कैपेबिलिटी है, गिविंग अ डेटरेंट पंच टू द एनिमी, वो बढ़ता है इस शिप के ऐड होने से। देखिए, हम समंदर के बीचों बीच यहाँ पर मौजूद हैं और कहा जाता है कि अगर हम आईएनएस इम्फाल की बात करें तो अपने आप में ये चलती फिरती एक स्मार्ट सिटी है। यस, स्मार्ट सिटी इन द सेंस आप बोल सकते हो कि जो भी डिजिटाइजेशन है एज कम्पेयर टू एनी प्रीवियस शिप, द अमाउंट ऑफ डिजिटाइजेशन इस शिप पर बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण मैन पावर रिक्वायरमेंट कम हो जाती है एंड वी कैन वर्क मोर एफिशिएंटली एंड इन अ बेटर वे।
और हम पिछली शिप्स की बात करें, पुराने शिप्स की बात करें, तो उससे कैसे अलग है आईएनएस इम्फाल? अगर बाकी शिप से कंपेयर करें तो बाकी शिप्स के जो कंस्ट्रक्शन फेज़ था, जो कि प्रीवियस शिप उनमें 7 एंड 15 अल्फ़ा में 10 साल लगते थे फ्रॉम द की लेइंग टू द डिलीवरी ऑफ द शिप। हमारे केस में इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 5 इयर्स एंड आर कंस्ट्रक्शन पीरियड और करेक्शन द ट्रायल पीरियड विच स्टार्टेड ऑन 28 अप्रैल से लेकर डिलीवरी जो कि 20 अक्टूबर 2023 को हुई थी, दैट वाज कंप्लीटेड विद इन द शॉर्टेस्ट टाइम, दैट इज 6 मंथ्स। और ये इंडियन इंडिजिनियस शिप बिल्डिंग के लिए सबसे छोटा टाइम फ्रेम है एंड ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लेवल से एट पार है। देखिए, हम बात कर रहे हैं आईएनएस इम्फाल की, कमीशन कर रहा है ये, और 26 जनवरी से पहले, लगभग 1 महीने पहले, ठीक 1 महीने पहले। तो ऐसे में कैसा महसूस होता है भारतीय नौसेना का एक हिस्सा बनकर? इट्स अ बहुत प्राउड फीलिंग है और गर्व की बात है कि हम 1 महीने पहले कमीशन हो रहे हैं, 26 जनवरी के पहले, और इस साल का दिस वुड बी द ओनली शिप जो कि कमीशन हुआ है। विद दैट रिगार्ड्स एंड द कंप्रेशन ऑफ द टाइमलाइंस, इट इज़ अ प्राउड फीलिंग एज अ कमीशनिंग क्रू ऑफ द शिप। थैंक यू सो मच। तो हम आपको आईएनएस इम्फाल की हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ ये तस्वीर देखिए आप कैसे समंदर में सशक्त हो रही है भारतीय नौसेना। गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन समंदर किसी दरिया में कभी नहीं गिरता। ना अब चीन की चालबाजी चलेगी, ना तो पाकिस्तान की कोई साजिश चलेगी, क्योंकि भारतीय नौसेना को मिल गया है अब तक का सबसे ताकतवर युद्धपोत आईएनएस इम्फाल। जी, हम आईएनएस इम्फाल की बात कर रहे हैं, इसकी खासियत क्या है, और भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने से ये कितनी ताकत की बात है, कितनी फ़ख्र की बात है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। हम कैप्टन से बात कर लेते हैं। कैप्टन, सबसे पहले बहुत-बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू, धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जैसे ही नौसेना के बेड़े में आईएनएस इम्फाल शामिल हो रहा है, तो कैसे नौसेना पहले से कहीं ज़्यादा सशक्त हो रही है? क्या ख़ासियत है आईएनएस इम्फाल की? आईएनएस इम्फाल प्रोजेक्ट 15 ब्रावो की श्रृंखला की तीसरी युद्धपोत है। इससे पहले आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस मोर्मुगांव कमीशन हो चुके हैं 2021 और 22 में। आईएनएस इम्फाल दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे आधुनिक युद्धपोतों में गिनी जाती है। इस युद्धपोत में मैरीटाइम वॉरफेयर के सभी डोमेन्स में ऑपरेट करने की क्षमता है। एंटी सरफेस, एंटी एयर, एंटी सबमरीन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। हमारे पास 2 हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि जहाज़ की क्षमता को और भी बढ़ाते हैं। और इसमें जो भी इक्विपमेंट है, नेविगेशन इक्विपमेंट, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट, मशीनरी, कंट्रोल्स, सभी के सभी अत्याधुनिक हैं। और हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात यह है कि 75% ये इंडिजिनस है। सो हमारा जो इंडिजिनस कंटेंट है इस जहाज़ में और इस प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट 15 ब्रावो के जहाज़ों में, वो पिछले प्रोजेक्ट से ज़्यादा है। और हम हर चुनौती का सामना करने के लिए हर समय सदैव तत्पर हैं। मतलब आत्मनिर्भर भारत की ये बहुत बड़ी मिसाल। बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 75% इंडिजनाइजेशन एंड आगे चलते हुए ये परसेंटेज और बढ़ती रहेगी अगले प्रोजेक्ट्स में, ये हमारा विश्वास है। और आईएनएस इम्फाल से जुड़ी हुई कुछ और ख़ास बातें आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? आईएनएस इम्फाल अपने पूर्वोत्तर राज्यों में जो राज्यों के नाम पर सबसे पहला जहाज़ है जो किसी पूर्वोत्तर रीजन की जो सिटी है, शहर के ऊपर उनका नामकरण किया गया हो। प्रोजेक्ट 15 ब्रावो में 4 जहाज़ हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो शहीद थे, उनकी याद में भी। एक्चुअली इम्फाल की जो इम्फाल है उसकी काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है। और आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो बर्मा कैंपेन हुआ था वो नॉर्थ ईस्ट में उसका जो मेन थिएटर था, वहाँ इम्फाल में एक बैटल ऑफ इम्फाल हुआ था। बैटल ऑफ इम्फाल में आज़ाद हिंद फौज और उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले अपना जो झंडा फहराया था इंडियन मेनलैंड में, वो मोइरांग में था जो कि इम्फाल के पास है। एंड वहाँ बिटवीन जो ब्रिटिश फौज
और जो जापानीज़ के बीच में लड़ाई हुई थी, वो एक बहुत बड़ा पड़ाव था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसने कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पूरे रुख को बदल दिया था। और आज का जो हम प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं, मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर देखते हैं, वो काफ़ी हद तक वो बैटल ऑफ इम्फाल और वहाँ बैटल ऑफ कोहिमा, उनकी जो रिजल्ट्स थे उसके ऊपर उनका प्रभाव काफ़ी रहा है आज के वर्ल्ड ऑर्डर पे। अच्छा, इतना शानदार सा जहाज़ है, थोड़ा सा हम भी वॉक कर लेते हैं और आप भी हमें दिखाइए अपनी शिप की और भी शानदार सी तस्वीरें और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ। जैसे मैंने अभी थोड़े समय पहले कहा, ये मल्टी डोमेन वॉरफेयर के लिए हाँ, हाँ। केपेबल है। आप ये जो देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी वेपन्स एंड सेंसर्स हैं, ये रेडार्स और वेपन्स हैं, गन्स हैं, मिसाइल्स हैं। आपके ये हमारा 76 मिलीमीटर गन है। ये एंटी सरफेस और एंटी एयर वेपन्स, एंटी एयर टारगेट्स के लिए है। इसके पीछे ब्रह्मोस है। ब्रह्मोस जो कि लॉन्ग रेंज, ये हम किसी भी शिप या फिर किसी भी शोर इंस्टॉलेशन को अटैक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके पीछे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि किसी भी हवाई हमले से हमको बचा सकता है। उसके पीछे एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं, जो कि सबमरीन्स के खिलाफ यूज़ होता है। और इसके पीछे हमारे टॉर्पिडोज़ हैं, 30 मिलीमीटर गन्स हैं। मीडियम रेंज मिसाइल्स की एक और बैटरी हमारे पीछे है, और पीछे हवाई सतह है जहाँ की काफ़ी सारे और भी हमारे वेपन्स एंड सेंसर्स वहाँ पे हेलीकॉप्टर हैंगर के ऊपर है। तो इनमें से मेजॉरिटी जो वेपन्स हैं, इनफैक्ट सारे वेपन्स जो हैं, ये या तो हमारे देश में बने हैं, हमारे ही कंपनीज़ ने बनाई है, या ये हमारी कंपनीज़ ने हमारे जो मित्र राष्ट्रों के जो कंपनीज़ के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप करके या कोलैबोरेशन में बनाई है। सो इसीलिए हमारा जो परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन काफ़ी हाई है। इनके अलावा इनके जो भी इतने वेपन्स एंड सेंसर्स आप देखते हैं, इन सब का इन्फॉर्मेशन एक जगह आता है, उसे इंटीग्रेट किया जाता है। उसको हम कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें कि जो हमारे संक्रिय कक्ष में कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम पे पूरी तस्वीर, जो हमारी टैक्टिकल तस्वीर की पूरी एनालिसिस होती है, और फिर हम लड़ाई लड़ते हैं, वो भी इंडिजिनस है। सो काफ़ी हद अच्छा, तक एक इमोशनल सा सवाल है। मुझे मालूम नहीं कि ऑफिसर से इमोशनल सवाल करना चाहिए, भावनात्मक सवाल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। आपने खुद कहा ये आत्मनिर्भर भारत की बहुत ही बेहतरीन सी तस्वीर है। इसके जो ज़्यादातर हिस्से हैं, जो मशीनरीज की बात कर रहे हैं हम, इंडिया में ज़्यादातर इंडिया की हैं। तो क्या इससे भी कोई सेंस ऑफ बिलोंगिंग आती है, मतलब एक प्राउड वाली फीलिंग आती है, एक अच्छी वाली फीलिंग आती है कि ये हमारा, हमारे भारत का है? ये तो स्वाभाविक है कि जब हम इस शिप पे कदम रखते हैं और हमें ये मालूम है कि ये जहाज़ का डिज़ाइन हमारी नेवी ने खुद किया है। हाँ। हमारी नेवी की वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने इस जहाज़ की डिज़ाइन खुद की है, और ये हमारे ही शिपयार्ड में बना है, हमारे लोगों ने बनाया है। और इस जहाज़ में जितने भी अस्त्र शस्त्र सेंसर वेपन जितने भी लगे हुए हैं, उनमें से भी अधिकतर यहाँ बने हैं, या फिर हमने किसी के साथ स्ट्रेटेजिक टाई अप करके उनको इंडिया में ही बनाया है। तो ये हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है और गौरव की बात है। गर्व की बात है, गौरव की बात है। सर, हमें ये भी बताइए, थोड़ा बेसिक सवाल है ये। देखिए, हम समंदर के ठीक बीचों बीच हैं और समंदर से आप देश की रखवाली कर रहे हैं। अगर हम बात करें आर्मी से, एयरफोर्स की बात करें, तो कितना अलग हो जाता है चैलेंज? समंदर में चुनौतियाँ कैसे ज़्यादा हो जाती हैं? समंदर में अभी आप मुंबई से निकलेंगे, आप 12 नॉटिकल माइल बाहर, यानी कि 20 किलोमीटर बाहर आप निकलते ही 1 घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल वाटर्स में हैं। और इंटरनेशनल वाटर्स में आपके साथी भी हैं, न्यूट्रल्स भी हैं, आपके पड़ोसी राष्ट्रों के भी जहाज़ हैं। तो ये डोमेन थोड़ा अलग है। दूसरी बात, यहाँ हम एबव सरफेस लड़ाई करते हैं, जो एंटी एयर लड़ाई करते हैं, सरफेस पे भी लड़ाई करते हैं, सरफेस के नीचे पनडुब्बी के खिलाफ भी लड़ाई करते हैं। सो तीन डिफरेंट डोमेन्स हो गए, एयर, सरफेस एंड सब सरफेस। साथ में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी लड़ाई। ट्रिपल चैलेंज। ट्रिपल उससे भी ज़्यादा। सो इट इज़ डिफरेंट, बट आई वुड से कि सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं। आर्मी के अपने चैलेंजेस हैं, एयरफोर्स के अपने चैलेंजेस हैं, और हमारे अपने चैलेंजेस हैं। और हम अपने चैलेंजेस के लिए सदैव तत्पर हैं।
हाँ, ये तो है, हमने भी देखा, यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है। आप यहाँ से कुछ और बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहेंगे? बिकॉज़ हम यहाँ पे देखिए हमारे लिए भी ये बहुत गौरव की बात है, फ़ख्र की बात है कि हम इस वक़्त आईएनएस इम्फाल पर मौजूद हैं। इंडिया डेली लाइव इस शिप की कोने-कोने की तस्वीर हमारे दर्शकों को दिखा रहा है। तो कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप देना चाहेंगे? हमारे जो इंडिजिनस वॉरशिप्स हम बनाते हैं, हाँ, हाँ। इंडिया में बनाते हैं जो जहाज़, उनकी जो कंस्ट्रक्शन टाइमलाइंस हैं वो वो घटती जा रही हैं। और इम्फाल सबका जो बिल्ड टाइमलाइन है, जो जब से ये बनाना शुरू हुआ और आज तक का जो टाइमलाइन है, ये सबसे कम है आज तक के जितने भी हमने डिस्ट्रॉयर्स बनाए हैं उनमें। और हमारे जो ट्रायल्स का टाइमलाइन है, जो हमने अप्रैल 27 तारीख को हमने ट्रायल शुरू की और हम 6 महीने के अंदर हमारी शिप की डिलीवरी हो गई, ये भी एक रिकॉर्ड है। ये हमारे ट्रायल्स काफ़ी जल्दी हुई और ये भी इसी चीज़ को दर्शाता है कि हमारे जो शिपयार्ड, ट्रायल टीम्स, नेवी, जितने भी हमारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें बहुत अच्छा तालमेल है। और हमारे जहाज़ ने कमिश्निंग से पहले ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और ये पहली बार हुआ है कि हमारा एक इंडिजिनस डिस्ट्रॉयर ने या इंडिजिनस किसी भी इंडिजिनस वॉरशिप ने कमिश्निंग से पहले हमारा जो प्राइमरी वेपन है, मिसाइल, जो सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, उसका सफल परीक्षण हमने कमिश्निंग से पहले ही कर दिया है। यानी कि ये आज तक जितने भी जहाज़ कमीशन हुए हैं उनमें ये सबसे ज़्यादा कॉम्बैट रेडी जहाज़ है। और ये जो ट्रेंड है आगे के लिए और भी अच्छा है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि जो इसके बाद में और जो जहाज कमीशन होंगे वो हमसे भी और ज़्यादा रेडी होंगे। सो दिस इज़ ए गुड थिंग फॉर ये हमारे देश के लिए, हमारे नौसेना के लिए, हमारे शिपयार्ड्स के लिए बहुत अच्छी बात है। कई मामलों में आईएनएस इम्फाल कहीं न कहीं मिसाल पेश कर रहा है। देखिए, ये नए भारत की तस्वीर है, आधुनिक भारत की तस्वीर है, सशक्त भारत की तस्वीर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और इन्फॉर्मेशन है जो हमें मिली है कि एक महिला सशक्तिकरण की भी तस्वीर पेश कर रहा है आईएनएस इम्फाल। एब्सोल्युटली, आपने सही कहा। आपको तो पता ही होगा कि हमारे सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की एंट्री जो है वो बढ़ा दी गई है। और अभी पहले सिर्फ ऑफिसर्स महिलाएं आती थीं, अभी हमारे सेलर्स भी, हमें सेलर्स काडर में भी हमारी अभी महिलाएं आ रही हैं और इनकी तादाद बढ़ती रहेगी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो ये हमारा पहला जहाज़ है जो कि जिसे कि कंस्ट्रक्शन फेज़ में ही, जहाज़ के कमीशन होने से पहले, इसमें सेपरेट अकोमोडेशन दिया गया है, सेपरेट फैसिलिटीज़ दी गई हैं ताकि हम महिलाओं को यहाँ डिप्लॉय कर सकें, ऐसे एडवांस वॉरशिप में डिप्लॉय कर सकें बड़ी तादाद में। सो यहाँ पे एक सेपरेट मेस है, एक सेपरेट ऑफिसर्स के लिए सेपरेट अकोमोडेशन है, विमेन ऑफिसर्स के लिए सेपरेट मेस है, विमेन सेलर्स के लिए उनके अलग अलग वॉश स्पेसेस हैं। तो ये फैसिलिटीज़ हमें इनेबल करेगा कि हम आगे चलते हुए विमेन को अपने इन फ्रंटलाइन शिप्स पे डिप्लॉय कर सकें और उनको सहूलियत से दे विल बी एबल टू वर्क ऑन बोर्ड। अच्छा कैप्टन, देखिए अभी ना बहुत ही खूबसूरत सी तस्वीर निकल कर सामने आ रही है आईएनएस इम्फाल की। देखिए, एक तरफ सूरज ढलने को है तो दूसरी तरफ आईएनएस इम्फाल चमक रहा है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने लहजे में इस तस्वीर को समझाएं। आईएनएस इम्फाल एक उभरते हुए एक विकसित भारत की एक निशानी है। ये हम कहते हैं ना 2047 तक हमारा नेशनल विज़न है कि हम एक डेवलप्ड कंट्री बन जाएंगे, विकसित भारत बन जाएंगे। मैं कहूँगा कि ये हमारे एक विकसित भारत की पहचान है। ये जो जहाज़ है, ये आज आप दुनिया के किसी भी आधुनिक से आधुनिक देश के, किसी भी देश के, विकसित देश के आधुनिक से आधुनिक युद्धपोत के साथ इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं। हम उनके बराबर हैं। सो दिस इज़ अ साइन ऑफ मॉडर्न इंडिया, ए डेवलप्ड इंडिया। इम्फाल आई वुड से इज़ अ हार्बिंगर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ए डेवलप्ड इंडिया। कैप्टन, एक बात और आपसे जानना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि कहा ये जा रहा है कि आईएनएस इम्फाल कमीशन कर रहा है, इसके बाद चीन, पाकिस्तान, उनके लिए ये कड़ा संदेश है कि वो अब हमारी तरफ सिर उठाने की भी जुर्रत नहीं करेगा। मेरा कहना यही है कि आईएनएस इम्फाल हमारी नौसेना की और हमारे भारत की समुद्री ताकत को और बढ़ाएगा। भारतीय नौसेना एक बहुत ही सुदृढ़, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेवी है
हमारी कैपेबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। केवल हिंद महासागर नहीं, उसके बाहर भी हम ऑपरेट करते हैं। एंड INS इम्फाल हमारी जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है, हमारी इंडिया की जो, हमारे भारत की जो मैरीटाइम कैपेबिलिटी है, उसमें एक बहुत बड़ा बढ़ावा देगा। INS इम्फाल आ गया, व्हाट नेक्स्ट? क्या है टारगेट भारतीय नौसेना का? INS इम्फाल के बाद अभी जैसे मैंने कहा, ये तीसरा जहाज़ है प्रोजेक्ट 15 ब्रावो का। इसके बाद एक और जहाज़ आना है प्रोजेक्ट ब्रावो का ही, वो सूरत उसका नाम है। वो भी अभी अपने ट्रायल्स के लिए रेडी हो रहे हैं। और भी कई सारे जहाज़ हैं जो भी कंस्ट्रक्शन लाइन में हैं, और भी शिप्स, सबमरीन्स, इंडियन नेवी की अभी बहुत सारी शिप्स एंड सबमरीन्स ऑन ऑर्डर हैं। एंड देयर आर many of them in design stage. So Indian Navy has a bright future. थैंक यू कैप्टन। तो देखिए, INS इम्फाल का कमीशन हो चुका है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी भी लक्ष्य हमारा आगे और भी है। हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे, रोज़ बढ़ेंगे, तब तक बढ़ेंगे जब तक सबको पीछे ना छोड़ दें।